Hello students, we are reading chapter 1 good behavior of beha- moral education. Okay, so let's start with inspiring incidents. Okay, so in a village near Jaipur in Rajasthan, four women were going to fetch water with their pitchers on their heads. As you know, there is scarcity of water in Rajasthan. Water has to be brought from afar and women have to do this chore. The four women were wrapped in conversation while on their way to fetch water. One of them said, "My son is very good. He is a wrestler. He takes part in a big wrestling competition. He is known in all over the region. People respect me as his mother." The second woman said, "My son is a judge. He sits in his chair and decides cases. He awards punishments to the guilty. People come to me with a request to recommend their cases to him." The third woman lost no time and said, "My son is an astrologer. Gazing at the stars, he predicts rains, famines, and eclipses. People crowd our houses to ask him about their future. Everyone respects me." When the fourth woman did not say anything, the other three taunted her that her son was not learned. The woman had to reply to his taunt. She said, "He serves me a great deal. While studying, he also cares for the village. All the people praise him. I am happy with this." Meanwhile, they reached the well. They filled their pitchers with water and proceeded homewards. An old man was listening to their conversation. He was curious to know who amongst the sons is the best. They had hardly proceeded a few meters when a car stopped near them. The judge, who was in the car, scolded his mother for bringing water during daytime and thus disregarding his status. After saying this, he went away. He had hardly gone when there was another voice coming from behind. It was the wrestler who was returning home. He too scolded his mother for being late in fetching water. It was too late. When would she cook? He was hungry. Saying this, he also went away. Again there was an angry voice. It was the astrologer's turn now. He was cursing his fate for not getting food by that time of the day. He went away saying he had to go someplace immediately. After some time, the fourth woman's son came running. He removed his mother's pitcher from her head and put it on his own. There were tears in his eyes. He cursed himself because his mother had to fetch water for him. Hearing this, the other three women bowed their heads with shame. Meanwhile, they had reached their locality and went to their respective houses. The old man was happy as he has got the answer to his क्वेश्चन। तो यहाँ एक इंस्पायरिंग इंसिडेंट बताया जा रहा है कि एक विलेज था राजस्थान का जयपुर, ठीक है। वहां की फोर वुमेन जो थी पानी भरने के लिए अपने अपने मटके लेकर अपने सिर पर और जा रही थी। आपको तो पता है राजस्थान में कितना मतलब पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी मतलब अभाव है ना, पानी का बहुत अभाव है, ठीक है। तो वहां के लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, ठीक है। तो वो चारों जो वुमेन्स थी आपस में जब पानी भरने जा रही थी तो आपस में गॉसिप करती हुई जा रही थी। तो उनमें से एक कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा क्या है, रेसलर है और वो बड़े बड़े रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता है, ठीक है। वो पूरे क्षेत्र में जाना जाता है उसकी रेसलिंग की वजह से। तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी वजह से कि ये इस रेसलर की माँ है। तो सेकंड वुमेन कहती है कि मेरा बेटा तो जज है, वो जज की कुर्सी पर बैठता है, केसेस डिसाइड करता है, उनको रिजल्ट सुनाता है, पनिशमेंट देता है ना। लोग मेरे पास सिफारिश लेकर आते हैं कि हमारे केस के लिए आप जज साहब से कुछ कहिए। तो उतने में ही थर्ड वुमेन कहती है, जरा से भी टाइम उसने नहीं लगाया और बोला कि मेरा बेटा तो एस्ट्रोलॉजर है, वो स्टार्स पढ़ सकता है, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी कर देता है कि कब बारिश होगी, है ना, कब भूकंप आएंगे, कब ग्रहण लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरे घर में भीड़ लगी रहती है लोगों की, अपना अपना फ्यूचर जानने के लिए लोग मेरे घर में आते हैं, सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो फोर्थ वुमन जो थी वो कुछ नहीं कह रही थी,
ठीक है। और जो अदर 3 वुमेन थी ना, उनको क्या कर रही थी, टोंट कस रही थी कि तुम्हारा बेटा तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। तो वुमेन ने, जो 4th वुमेन थी, उसने उसका, उन लोगों का, उनकी बातों का रिप्लाई दिया। कहती है कि वो सभी की सेवा करता है। ठीक है। उसने भले पढ़ाई नहीं करी है ना, ज्यादा पढ़ाई उसने नहीं की है, फिर भी पूरे विलेज के लोग जो है, सभी लोग जो हैं, उसे क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उससे खुश होते हैं। और मैं इन सब चीजों से खुश हूं कि मेरे बच्चे को सभी पसंद करते हैं। ठीक है। इतने में वो बात करते करते कुएं तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उनने अपना पिचर मतलब मटका भरा और उसके बाद पानी भर के वापस घर की तरफ हो चली, तो एक ओल्ड मैन था, उनकी बातें वो सुन रहा था। ठीक है। उनकी आपस की जो बातें हो रही थी उनको सुन रहा था। तो अब वो क्यूरियस था जानने के लिए किसका बेटा बेस्ट है। ठीक। तो उसने क्या किया, जैसे ही ये लोग कुछ आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर एक कार स्टॉप हुई, एक कार आकर रुकी। तो वो कार थी जज की। ठीक है। तो उसने देखा अपनी माँ को, तो अपनी माँ को वो डांटने लगा। कहता है कि तुम दिन के टाइम में पानी लेकर आ रही हो, लोग देखेंगे तो मेरे स्टेटस पर क्या असर पड़ेगा। और इतना कहकर वो चला गया। उसके बाद जैसे ही वो गया, पीछे से एक और आवाज आई। वो थी रेसलर की आवाज। रेसलर अपने घर लौट रहा था। उसने फिर से चिल्लाया, उसने भी डांटा अपनी माँ को। ठीक है, कि तुम इतना लेट पानी लेकर आ रही हो, है ना, और घर में कुछ पकाया हुआ भी नहीं है, मुझे भूख लगी है। और इतना कहकर वो भी चला गया। इतने में तीसरी आवाज आई, वो थी एस्ट्रोलॉजर की। ठीक है। वो भी अपनी माँ को कोस रहा था, कह रहा था कि तुम इतना टाइम लगा दी पानी लाने में, और घर जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, अभी तक आपने कुछ पकाया नहीं है। चिल्लाते हुए चला गया। अब उतने ही में फिर कुछ समय के बाद 4th वुमन का बेटा आता है। ठीक है। दौड़ते हुए आता है। वो अपनी माँ के सिर से वो पिक्चर लेता है, मटका लेता है। ठीक है। और खुद रख लेता है। और उसकी आंखों में, लड़की जो लड़का था, वो जो 4th वुमन का जो सन था, उसकी आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे। वो खुद को कोस रहा था कि मेरी वजह से मेरी माँ को इतनी दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, वाटर लेकर आना पड़ता है। तो ये सारा सब कुछ सुनकर वो जो तीनों वुमेन थी, उनका जो सिर था वो शर्म से झुक गया, है ना। और उसके बाद वो तीनों महिलाएं जो थी, तीनों लेडीज अपने अपने रिस्पेक्टिव घर में वापस चली गई। ओल्ड मैन बहुत हैप्पी हुआ, है ना, ये जानकर कि उसका ये क्वेश्चन था कि चारों बेटों में से कौन सा बेस्ट है। तो उसको अब उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया था कि बेस्ट बेटा कौन सा है। तो इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि गुड बिहेवियर जिनका होता है उससे सभी खुश रहते हैं, वो सबका काम भी करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें गुड बिहेवियर रखना चाहिए। ओके, हियर सम मोर इंसिडेंट्स आर गिवन। तो यहाँ एक इंसिडेंट दिया हुआ है। ये इंसिडेंट जो है प्राचीन समय का है कि 2 किंग्स के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है। बहुत सारे वॉरियर्स जो थे इस बैटल में मारे गए। ठीक है। अब जब मारे गए तो एक दिन राजा ने सोचा कि इनके किंगडम में लोग कैसे रह रहे हैं, इतने शहीद, इतने देशभक्त लोग जो शहीद हुए हैं ना, उनका जीवन कैसा चल रहा है। तो किंग ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं। तो किंग निकले सफर पर। तो वो एक घर में घुसे, है ना, घर में एंटर किया उनने। तो उनने देखा कि एक विडो थी। तो किंग ने उस विडो मीन्स होता है विधवा, उस विधवा लेडी से पूछा, विडो लेडी से पूछा वार के बारे में, मतलब युद्ध के बारे में। तो वुमन ने बताया कि उसके जो हस्बैंड है ड्यूरिंग द वार, मतलब युद्ध के समय उनकी डेथ हो गई, उसने अपना सब कुछ खो दिया, है ना। उनने ये बोला, लेकिन मेरे पास 4 प्रीसियस ज्वेल्स हैं। रत्न, ज्वेल्स मीन्स होता है रत्न, आभूषण। ठीक है। 4 मीन प्रीसियस ज्वेल्स है मेरे पास। तो किंग ने कहा कि वो 4 ज्वेल्स जो हैं वो देखना चाहते हैं। ठीक है। तो वुमेन ने कहा थोड़ी देर आप इंतजार करिए। कुछ देर के बाद उसके चारों बेटे स्कूल से घर आते हैं। वो अपनी बुक्स एक जगह जमा कर रखते हैं। ठीक है। अपनी माँ के फीट, पैरों को छूते हैं और उसके बाद कुछ खाने लायक चीजें खाकर और अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। तो इन सब
और किंग जो थे वो किंग बनकर नहीं निकले थे, एक आम आदमी बनकर निकले थे सफर पर, ठीक है, देखने के लिए। तो कुछ समय के बाद वो जो मेन थे, है ना, जो किंग थे, उनने वुमेन से बोला कि दिखाइए मुझे आपके 4 रत्न कौन से हैं। तो वुमेन ने अपने बेटों की तरफ इशारा किया कि ये है मेरे 4 ज्वेल्स, ठीक है। तो किंग ने अपना डिस्कस मीन्स होता है चोला, ठीक है, चोला मतलब ऐसा लबादा टाइप का कुछ होता है आम इंसान का, ठीक है, वो चीज हटाया और वो अपने किंग के रूप में आ गया। तो वुमेन जो थी वो किंग को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गई, ठीक है। तो किंग ने क्या किए, वुमेन के फीट छुए, मतलब लेडी के पैर छुए, और उसके बाद उन 4 बेटों को आशीर्वाद दिया उनने, ठीक है। मतलब उन 4 बेटे, वो 4 बेटों को रत्न क्यों बोल रही थी, क्यों, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, ठीक है, वो अपनी माँ को परेशान नहीं करते थे। और उनके इस बिहेवियर से राजा भी उनको आशीर्वाद देकर चले गए, ठीक है। राजा भी जो थे, किंग भी जो थे, वो बहुत खुश हुए उनके इस बिहेवियर से। नाउ दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, फाइंड द आंसर्स, ओके।